चलिए, so we are coming to the session for today. ठीक है, आज का मैंने आपको बता दिया एरिया जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड है। कल का दिन भी आपको मिला है, डे बिफोर यस्टरडे आल्सो वी हैव बिट टाइम टू गो थ्रू विद दोस पर्टिकुलर सेक्शंस। सो लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। Fetch marks. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज सेशन, इट इज इफ अ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट्स अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन है कि अगर एक स्पीकर म्यूट करके रखेंगे, if a police officer investigates a case, non-cognizable case, without the order of the magistrate, it is a material defect vitiating the ultimate proceedings. It is a non-conformance of the mandatory provision laid down in section 155 subsection 2 of the CRPC. The defect is curable, and last one is both B and C. Yes, what should be the right answer? So most of you are giving the answer that is D, that is it is in non-conformance to the mandatory provision of 155 section 2 of the CRPC, but such kind of defect is curable in nature. It is perfectly fine. देखो हमारे जो भी irregularities हैं वो curable होंगी या नहीं होंगी, उसका पूरा का पूरा जो लिस्ट है सेक्शन 460 और 461 के अंदर हमें मिल जाता है। and 460 and 461 will tell you that which of the defects are curable in nature and which of the defects are non curable. अगर किसी भी non cognizable offense में पुलिस ऑफिसर ने बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन किया है, वैसे तो ये मैंडेटरी प्रोविजन की वायलेशन है, लेकिन सच डिफेक्ट इज क्यूरेबल इन नेचर, द प्रोसीडिंग्स विल नॉट विशिएट ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। अगला सवाल है that the magistrate empowered to take cognizance of an offense under section 190, taking cognizance of an offense on complaint after examining the complainant and the witnesses under section 200 and finds that there is sufficient ground for proceeding. सवाल है, दोबारा से पढ़ रहा हूं, a magistrate empowered to take cognizance of an offense under 190, taking cognizance of an offense on complaint and after examining the complainant and the witnesses finds that there is a sufficient ground for proceeding. Option number A, may issue warrant if it appears to be a warrant case. B है shall issue summons if it appears to be the summons case. C है either A and B, और D कह रहा है may proceed with the issue of process or postpone the issue of process. Yes. In these, which is the best suitable answer you are believing? ठीक है, suitable answer कौन सा होना चाहिए? Some of you are inclined towards C and some of you are inclined towards D. ठीक है, ठीक है, और कोई ठीक है, तनु is also saying that C should be the answer. देखो as far as the concerned question is there, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है इसको आप फोकस करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि बेरेक्ट के लैंग्वेज के बेसिस पे अगर सवाल पूछा जाए तो आंसर भी बेरेक्ट की लैंग्वेज के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, लिखा है that if there is a sufficient ground to proceed। ठीक है, जितने भी लोग डी आंसर कर रहे हैं आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो अगर सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड है तो या तो कोर्ट समन वारंट इशू कर देगा या वारंट जारी कर देगा। Either the court will issue the summons or the court will issue the warrants as the case may be। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा either A और B है that is the suitable answer। अब D जो है वो क्यों आंसर नहीं होना चाहिए? क्यों? बिकॉज इसमें लिखा है may proceed with the issue of process और postpone the issue of process। देखो postponement of issue of process सिर्फ तब होती है when there is no sufficient ground to proceed further directly. The court is of the opinion that we are not going to proceed with the issue of process, rather we have to postpone it। ठीक है, और पोस्टपोन करके आप इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं ताकि आपको ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट जस्टिफाइड और क्रेडिबल ग्राउंड्स पे आई है या नहीं। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो डी आंसर आप लोग मेंशन करें ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो लास्ट वाला फ्रेज इसमें आ गया ना, postponement of the issue of process, it should not be there if there is a sufficient ground to proceed. Is it clear? Yes everyone? Yes. Coming to the next one,
ठीक है सुष्मिता, यू गॉट इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्यों डी ऑप्शन जो है हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल। पहला जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, दैट कोर्ट में इशू प्रोसीड विद द इशू ऑफ प्रोसेस, लेकिन और पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस जो है ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे मीटअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर, यस यस, इसमें हमने कौन सा सेक्शन अप्लाई किया? 204 अप्लाई किया, सेक्शन नंबर 204। ओके ओके सर, ओके। Coming to the next question, that after taking cognizance, a complaint can be sent to the police for investigation under 156(3), 202 clause 1, subsection 1, section 200 CRPC, or either A or B. After taking cognizance on complaint, after taking cognizance, a complaint can be sent for the police for investigation, can be sent to the police for investigation under 156(3), 202 subsection 1, section 200 CRPC, or either A and B. Yes, quickly, kindly give the answer. Okay, so 2 of you have given the answer, that is B. Yes, what about other? Yes, Tanu, Shikha, Kasak, रीटा का आंसर भी बी है। ठीक है, सोच लो। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने में। देखो बड़ा सिंपल है, दैट वंस द कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, तो अगर एक बार कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लिया है, आप चैप्टर नंबर 15 के अंदर प्रोसीड कर चुके हो, तो यू कांट गो टू सेक्शन नंबर 156(3), ये आप नहीं कर सकते। नंबर 2, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 200 के अंदर होता नहीं है। सेक्शन 200 जनरली सेज दैट the moment the complainant brings a complaint before the magistrate, the court has the authority to examine the complainant on oath and the witnesses, if any, whosoever are present over there. ठीक है, जो भी विटनेस साथ में है उसको भी एग्जामिन कर ले। लेकिन सेक्शन नंबर 202 का सबसेक्शन 1 जो है, that talks about that when the magistrate thinks it suitable that he has to postpone the issue of process. ठीक है, तो वो चाहे तो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं either himself और थ्रू एनी अदर मजिस्ट्रेट, और या फिर वो चाहे तो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर पास करेंगे, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट की सुपरविजन के अंदर है। चैप्टर नंबर 15 जो है उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है। तो जो पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे, दैट रिपोर्ट विल आल्सो बी ऑफ सेक्शन नंबर 202 इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी हमें चैप्टर नंबर 12 के अंदर स्विच नहीं करना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a doubt. I have a question regarding this question. Sir, एक जजमेंट आई थी ना जिसमें मतलब ये किया था हेल्ड की 2019 में कि 156(3) का जो है वो पोस्ट कॉग्निजेंस। वो सुष्मिता, यू आर टॉकिंग अबाउट विनू भाई मालविया, हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है ना, 2019 का जजमेंट है। दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर इशू। वो 156(3) और 173 सबसेक्शन 8 के कोरिलेशन की बात की गई है वहां पे। ठीक है, हमें दो चीजें समझनी पड़ती हैं कि प्रोसीडिंग्स चैप्टर 12 की हैं या प्रोसीडिंग्स चैप्टर 15 की हैं। अगर प्रोसीडिंग्स चैप्टर 12 की हैं तो मैजिस्ट्रेट इनिशियल स्टेजेस पे 156(3) का ऑर्डर पास करते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर चार्जशीट सबमिट हो चुका है और चार्जशीट की सबमिशन के बाद भी मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट सम मोर एविडेंसेस कैन बी देयर, तो मैजिस्ट्रेट 173 सबसेक्शन 8 रेड विद 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में कोरिलेट करके उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करते हैं। दैट इज द रेशियो ऑफ दैट जजमेंट। बट इफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंडक्टेड इन द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, तो उसमें हमें 156(3) देखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द मैजिस्ट्रेट हैज ऑलरेडी टेकन द कॉग्निजेंस अंडर चैप्टर नंबर 15 ऑफ द सीआरपीसी, दैट इज ऑन द कंप्लेंट, सो ही कैन नॉट रिवर्ट बैक टू चैप्टर नंबर 12। तो ये वहां पे इशू है। सर क्वेश्चन ये था ना, वी वर डिस्कसिंग वंस एक हमारी क्लास स्टडी, तो उसमें ये हुआ था कि वेदर the power of section 156(3) can be exercised at the post cognizance stage, and what is the difference between post cognizance, but the post cognizance is in relation to the police report case, not in the complaint case. मतलब सर 202 का और वो जो डिफरेंस आता है ना 156(3) का, कि क्या वो पोस्ट कॉग्निजेंस पे और प्री कॉग्निजेंस? सेक्शन नंबर 156(3) अगर पुलिस रिपोर्ट का मामला है तो प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस दोनों है, बट व्हेन इट कम्स टू द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स तो उस दौरान सेक्शन नंबर 202 का ऑर्डर जो है वो पोस्ट कॉग्निजेंस रहेगा, और 156(3) जो है वो हम नहीं इनिशिएट कर सकते बिकॉज द मैजिस्ट्रेट हैज ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस। ठीक है, वो इशू। ओके, मतलब पुलिस रिपोर्ट की बात करें तो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी एक्सरसाइज की जा सकती है। एग्जैक्टली। ओके, अभी आएगा ऐसा एक और सवाल आएगा शायद बीच में।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The next question is, if the police decided not to investigate the case and send the concerned report under section 157 to the magistrate upon receiving the said report, जब 157 की occurrence report जिसे हम कहते हैं, पुलिस वालों ने मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, that we are not going to investigate the case, occurrence report की बात है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, he may direct an investigation, the shall direct an investigation, may direct an investigation only when the report do not state the reason, or may direct an investigation if the case is of serious nature. What the court can do? दर्शक ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। ये कोई सेक्शन 159 में सीरियस नेचर वाली कोई बात लिखी गई है, ठीक है। 159 का जिक्र करना है ना, कि जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करके मैजिस्ट्रेट को ये कहा कि सर हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, accuracy report submitted to the concerned magistrate is stating that the police officer does not find it suitable to go for the investigation in the concerned case. What options the magistrate has in those type of situations? ठीक है, सेक्शन नंबर 159 का जिक्र किया जा रहा है और 159 के अंदर तीन चीजों की बात है, that the magistrate if finds it suitable he can direct the investigation, or if he finds it suitable he can go for the conducting of a preliminary inquiry either by himself or any other subordinate magistrate. So what should be the right answer? section number 159 जल्दी से देखो और वहां पे मुझे बस ये बता दो कि may लिखा है या shall लिखा है, ठीक है। कैसा आप बताएंगे जल्दी से, सेक्शन नंबर 159 देखो और वहां पे बताइए क्या लिखा है। may लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है that is the correct answer in this particular situation, ठीक है। अगला सवाल है, A is accused of a theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion. A is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion. Here A can be charged together for the both offenses. A can be tried at one trial for both offenses, both A and B. और D है A cannot be charged together and tried at one trial. Yes, joinder of charges, joinder of trials से ये सवाल उठा है। डिफरेंशिया क्रिएट क्या करना है, ये जो ऑन वन ओकेजन एंड ऑन अदर ओकेजन की बात जो लिखी गई वहां से आपका डिफरेंशिया क्रिएट होता है इस आंसर को ढूंढने में, ठीक है। So 2 of you are giving C. Sushmita is saying that B should be the answer. ठीक है, so few of you are giving that B should be the answer. Some of you are giving that C should be the answer. Yes, जो लोग ये कह रहे हैं that they can be tried at one trial for the both offenses, ठीक है। ये कहां से आप कर रहे हो, कौन सा सेक्शन ऐसी चीज की बात करता है? Yes, any one of you. हमारे पास जॉइंडर ऑफ चार्जेस या जॉइंडर ऑफ ट्रायल्स के लिए जो सेक्शंस हैं वो हैं 218 से लेके 223 तक, ठीक है। 218 till 223 will tell you that in what cases there will be the separate trials, in what cases there will be the joinder of persons or joinder of charges. Yes, सेक्शन नंबर 218 से 223 की बात करते हैं। और अगर मैं ब्रीफ में इस पे लेके आऊं तो सेक्शन नंबर 219 कहता है कि अगर आपने एक जैसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट एक जैसी है एक साल में एक से ज्यादा बार किया है तो हम आपके 3 ऑफेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही ट्रायल चलाएंगे, ठीक है। दैट इज द जॉइंडर ऑफ ट्रायल इन द केसेस वेयर द पर्सन हैज कमिटेड more than an offense on different occasions, but the offense is punishable under the same section with the same kind of a punishment, then section number 219 will apply. 220 बात करता है कि जब सेम ट्रांजैक्शन में माइंडेड आप सीरीज ऑफ ऑफेंसेस करते जाएं तो उस दौरान सेक्शन नंबर 220 का जो क्राइटेरिया है वो डेवलप होता है और आप एक ही ट्रायल में उस व्यक्ति के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो लगा लेते हैं। तो हमारा ये जो कंसर्न केस है, ठीक है, हमारा ये जो कंसर्न, डी पे आ गए ऑप्शन,
ठीक है, हमारा ये जो कंसर्न सिचुएशन है, ये कंसर्न सिचुएशन ना तो आपका सेक्शन नंबर 219 रेगुलेट करता है, ना 220 करेगा, ना 221 और ना 223, बिकॉज 223 तो जॉइंटर ऑफ पर्संस की बात करेगा। एंड हेंस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द करेक्ट आंसर शुड बी D, and it is to be followed according to section number 218 of the CRPC. 218, because A is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion, and here he cannot be charged together and tried at one trial. He cannot be tried at one trial, rather different trials will take place for as many charges which have been put up against such person. ठीक है, तो प्रोविजंस की एप्लीकेशन कब होगी और कब नहीं होगी इसका ध्यान रखना है। सिर्फ ये कि एक केस में जॉइंटर ऑफ पर्संस या जॉइंटर ऑफ चार्जेस जो है वो हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर केस में उसे अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है, एन इंटेंशनल ओमिशन टू एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 160 CRPC बाय अ पुलिस ऑफिसर विल अट्रैक्ट 174, 175, 188 or both ends. An intentional omission to an order made under section 160 CRPC. 160 के अंदर सबसे पहले याद करो क्या चीज है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, 65 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस वाले नोटिस देके पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं, लेकिन किसी भी वुमेन को या कोई भी व्यक्ति जो टेम्परेरी या परमानेंटली फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है तो उसको हम नहीं बुलाएंगे। सेक्शन 160 के अंदर पुलिस वालों ने अगर किसी भी व्यक्ति को नोटिस दिया है कि आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में या जहां पे भी पुलिस ऑफिसर्स बुला रहे हैं वहां पे अगर आना है और आप अगर नहीं आते हैं, दैट इज इंटेंशनल ओमिशन, देन द विच ऑफ द सेक्शन ऑफ आईपीसी विल बी देयर। जैसे कि आप डी कैसे कर रहे हो, 188 में क्या है, 188 में है यू आर कॉजिंग, सॉरी ए एंड बी था सर, नहीं ए एंड बी जो है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, इट इज डायरेक्टली सेक्शन नंबर 174। बेरेक देखना, बेरेक में मैंने मेंशन कर रखा है आप लोगों को। ठीक है, सेक्शन 160 जहां पे लिखवाया है वहीं पे 174 को मेंशन किया गया है। 175, हाँ 175 इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला सवाल है, पेटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000, 2000, 5000 और 500। बहुत ही सिंपल सवाल। पेटी ऑफेंस मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, ठीक है, व्हिच अ फाइन इज नॉट एक्सीडिंग 1000, 2000, 5000 और 500। शालिनी सोच समझ के, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। 2000 रुपए की बात सीआरपीसी में नहीं मिल रही है। ठीक है, सेक्शन नंबर 206 का जिक्र किया गया। सेक्शन नंबर 206 talks about that what are to be considered to be the petty offenses, and 253 will relate to that ऐसे केसेस में ट्रायल जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, प्ली ऑफ गिल्ट पे कैसे पनिश करोगे, ऑल दैट स्टफ इज देयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट एनी ऑफेंस इन व्हिच द फाइन इज नॉट एक्सीडिंग 1000, दैट ऑफेंस विल बी कॉल्ड टू बी द पेटी ऑफेंस। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 1000 से कम की भी है, तब भी हम उसे पेटी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लेके आते। सेक्शन नंबर 206 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज, ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिड ऑफेंस, टू ascertain the nature of offense only. Both A and B. Find the best suitable answer in this. Suitable answer. Suitable answer. सभी लोग A और B में फंस गए। What is the object of registration of FIR? FIR क्यों रजिस्टर करते हैं? ताकि आपको किसी ऑफेंस के बारे में जानकारी मिले, इसलिए नहीं करते हो? Yes. Why you go for the logic of the FIR? That is, you will get certain information about the alleged offense. ललिता कुमारी की जजमेंट में एक व्यू रखा गया, और that is we can say it is perfectly fine that the FIR will set the criminal law in motion
ठीक है, बट इट इज नॉट टू ascertain द नेचर ऑफ ऑफेंस, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये दो ऊपर के जो क्राइटेरियाज रखे हैं वो होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस इज डी। सुष्मिता ने आंसर बाद में चेंज किया है, बाकी सभी जो है बी और सी और ए में फंसे। ठीक है, पहले तो चारों ऑप्शंस पढ़ो, चारों ऑप्शंस का मीनिंग निकालो एंड देन ट्राई टू एनालाइज दैट व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिप्टिक मैसेज pertaining to be a cognizable offense, the police has a scope to conduct preliminary inquiry, cannot conduct preliminary inquiry, has to immediately lodge an FIR, or none of the above. When the information of a cryptic message pertaining to a cognizable offense, the police has a scope to conduct preliminary inquiry, cannot conduct preliminary inquiry, has to immediately lodge an FIR, or none of the above. ठीक है, दो लोग हैं आंसर जो दे रहे हैं, दैट इज ए शुड बी देयर, व्हाट अबाउट द अदर? सवाल समझो, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशंस को लेकर आई हैव गिवन यू सर्टेन केसेस इन योर नोटबुक्स आल्सो। टेलीफोनिक इंफॉर्मेशंस, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशंस अगर आती हैं तो वेदर दे विल बी कंसीडर्ड टू बी एन एफआईआर और the police officers are going to do something else. ठीक है, सिर्फ दो ही लोग सही आंसर की तरफ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पुलिस ऑफिसर हैज द स्कोप टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, उसको क्योंकि देखो ना क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है, अब टेलीफोन पे क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आ सकती हैं, तो we can't say that it is the logic of the FIR. The reason is very simple, that for the logic of the FIR, the primary requirement is section number 154 subsection 1, that there must be an informant who will state that there is a cognizable offense. He will give the information to you. He must be ready and willing to go for the signatures over that information. So 154 का subsection 1 का जो criteria, that is bit different. ठीक है, तो preliminary inquiries हो सकती हैं ऐसे cases में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, that if the information given to a police officer, नहीं सुष्मिता, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो डी नहीं है, वो ए है। ठीक है, वो आपने गलत आंसर देख लिया कहीं पे, इट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का सर, 10। अच्छा 10th का, ठीक है ठीक है। If the information given to a police officer relates to a cognizable offense, he may register the offense, he may conduct a preliminary inquiry, he may register the offense or conduct preliminary inquiry at the discretion given to the police, and it is mandatory for him to lodge an to register the offense. Which should be the right answer? सुष्मिता ने जैसे डी आंसर दिया है कि अगर cognizable offense के बारे में information है तो it is mandatory for the police officers to lodge the FIR, and that is perfectly fine. ठीक है, ललिता कुमारी versus government of UP has given the judgment, that is a landmark judgment over this. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, that is every activity which occurs in the police station is entered in the diary mentioned at the police station, maintained in the police station, and the diary is called station diary, daily diary, journal diary, all of them. Yes, every activity which occurs in the police station is entered in the diary maintained at the police station, and the diary is called station diary, daily diary. It is daily diary ना, ये diary दो बार आ गया, गलत है। Daily diary and journal diary, or all of them. So some of you are giving the answer that is B, and few of you are giving the answer that is it should be D. देखो जो right answer है वो D है। The reason is कि ये जो journal diary, station diary या daily diary है, ये एक ही चीज को कहा जाता है। These are not different things। ठीक है, सुष्मिता आपने पहले B कहा था ना? ठीक है, so रोज नाम था जिसको आप कह रहे हैं, perfectly fine। ठीक है, it is the all of the above is the right answer। ठीक है, बाद में याद आया है, एक बार OMR पे मार्क हो जाता तो फिर याद आने का कोई फायदा नहीं था। चलिए अगला सवाल है, what is the condition precedent for the registration of an FIR? What is the condition precedent for the registration of an FIR? FIR रजिस्टर करने से पहले क्या चीज आपको देखनी पड़ती है? Reasonableness of the information,
credibility of the information disclosing a cognizable offense, and all of the above. शालिनी जी याद करिए क्या करवाया है क्लासेस, याद करिए। भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को याद करो। ललिता कुमारी की जजमेंट जहां लिखवाई है कॉपीज में, उससे पहले एक और केस लिखवाया होगा भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 154 के अंदर लॉजिंग ऑफ या रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन के आगे कहीं पे भी ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं दैट इट मस्ट बी रीजनेबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, दीज आर नॉट रिटर्न। ठीक है, सो हेंस इफ यू आर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, it is the condition precedent for the registration of the FIR. The reasonableness of the information or credibility of the information can be checked at the later stages also. वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेकआउट किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, it is the duty of the police to ensure that each and every cognizable offense is promptly investigated in accordance with the law. The police can proceed to conduct investigation into the cognizable offense when the FIR has been lodged without receiving any FIR if the police suspects that the commission of such offense, both A and B, or only when the FIR has been lodged the same and the same is credible. What should be the best answer over here? जल्दी से याद करिए कौन सा प्रोविजन जो है वो आना चाहिए और what should be the answer to this question? Yes, question है, it is the duty of the police to ensure that each and every cognizable offense is promptly investigated in accordance with the law. The police can proceed to conduct investigation into a cognizable offense when the FIR has been lodged without receiving FIR if the police suspects that the commission of such offense, both A and B, only when the FIR is lodged and same is credible. So I'm getting B answer. B answer should be the perfectly fine answer because for proceeding with the investigation, आप जब investigation को शुरू करते हैं, FIR lodge करना एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप बिना FIR लॉन्च किए भी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सी क्यों नहीं हो सकता उसका कारण बता रहा हूं कि बिना FIR लॉन्च किए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। सेक्शन नंबर 157 जनरली ये बात कहता है व्हेनेवर एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। ठीक है, आप अगर सेक्शन नंबर 157 निकालोगे अपने अपने पेरेक्ट्स में, सो यू विल गेट ओवर देयर दैट एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, कि अगर तो किसी व्यक्ति ने आके आपको इंफॉर्मेशन दी, FIR दर्ज करवाया और उसके बाद आप अकरेंस रिपोर्ट भेजोगे और साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे, या अदरवाइज भी आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, यू कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल वेट फॉर द लॉजिंग ऑफ द FIR एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, इससे कोई सवाल अगर किसी का है तो पहले पूछो। Yes, anyone? Yes, Sushmita, is your query is clear? C क्यों नहीं हो सकता? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, पूरा क्लियर करेंगे। देखो हम FIR को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले रिकॉर्ड करवाना जो है वो ठीक समझते हैं। ठीक है, ठीक समझते हैं, बट द पॉइंट इज कि क्या बिना FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत है। क्यों ऐसा कहना गलत है? द पॉइंट इज वेरी सिंपल। देखो, द मोमेंट यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, समझते जाइएगा, मैं CRPC के अकॉर्डिंगली बात करूंगा। द मोमेंट यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, whatever is being done by the police officers, it will be regulated by section number 162 CRPC. Getting my point? The moment the investigation is started, if the statement of any of the witness or any other person is being recorded, it will be regulated by 162 CRPC. उसका जो यूज है ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान वो 162 के तहत देखा जाता है। अब हम अगर FIR को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले लॉज करवाने के लिए एम्फेसिस ड्रॉ करते हैं, जोर देते हैं, तो उसका पर्पस ये होता है कि FIR को 162 के दायरे से बचाया जाए।
ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को लॉन्च करते हो 154 के अंदर, सो दैट एफआईआर विल आल्सो बी हिटेड बाय 162 सीआरपीसी। तो हमने एक तो एफआईआर को बचाना है, सो वी कैन से कि एफआईआर को अगर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले लॉन्च कर लेते हैं तो एफआईआर की ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान कुछ क्रेडिबल वैल्यू जो है वो बन जाती है। लेकिन आपने मान लो एफआईआर लॉन्च नहीं किया, आपने डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस, और इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्टली स्पॉट पे चले गए बिना एफआईआर लॉन्च किए, और स्पॉट पे जाके उन्होंने लोगों से एग्जामिनेशन करना उनका शुरू कर दिया। तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का स्टेटमेंट जो है 161 के बयान दर्ज करने शुरू किए। द मोमेंट द इन्वेस्टिगेशन इज स्टार्टेड, नाउ 162 इज एप्लीकेबल, ठीक है। एंड हेंस अब एक बार इन्वेस्टिगेशन अगर शुरू हो गया है तो कोई भी अगर रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन कुछ भी अगर दर्ज होगा तो वो 162 के दायरे में रह के देखा जाएगा। इसीलिए सीआरपीसी कहीं पे भी ये मैंडेटरली नहीं कहता है कि एफआईआर पहले लॉन्च करना है, बिकॉज 157 आप पढ़ना तो वहां पे भी लिखा है एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। तो और अदरवाइज मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन आए आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो CRPC does not put a mandate over the police officer that FIR is to be primarily recorded. But अगर आप पुलिस मैनुअल्स देखें, पुलिस मैनुअल्स अब एक अलग विषय है, ठीक है। तो पुलिस मैनुअल्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले FIR को दर्ज कर देना चाहिए। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द पुलिस मैनुअल ओवर हियर, वी हैव टू गो टू एंड adhere to what is being regulated by CRPC, and CRPC nowhere put it a mandate over the police officer, and hence the answer should be that without receiving any FIR, if the police suspects the commission of any offense, he can conduct the investigation at that point of time, ठीक है। FIR जो है उसको अगर लॉन्च नहीं भी किया गया, so we can't say, just ठीक है, we can't say that it is generally the proceedings are, the investigation proceedings are vitiated। बट इसी के साथ साथ जो अगर आप सवाल को दोबारा से पढ़ें, ठीक है, तो लिखा है इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस इज प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। In accordance with law, the police can proceed to conduct investigation into a cognizable offense when the FIR has been lodged without receiving FIR if the police suspects that the commission of any offense. Now I am coming to your query, that is ये C क्यों नहीं हो सकता। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि C नहीं हो सकता, पहले तो हमें ये क्लैरिटी डेवलप करनी है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें एक्चुअली जो है उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 157 के अंदर जो अदरवाइज वर्ड है वहां से वो मीनिंग निकलता है। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज सेइंग बोथ ए एंड बी। अब बोथ ए एंड बी में जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है दैट इज व्हेन द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड, तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को भी इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे तो दैट इज quietly justified that when the FIR is lodged, the police officer can promptly go for the investigation proceedings. So now जितने भी लोग बी कर रहे थे, अब देखो सवाल को समझने में थोड़ी सी आप लोगों ने गलती क्या करी, वो ये कि आपने ये समझा कि बिना एफआईआर के भी पुलिस को अगर लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेशन करने जा सकते हैं, परफेक्टली फाइन जा सकते हैं। लेकिन अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो उसमें भी क्या दिक्कत है। तो 157 के अंदर मैंने कहा ना, दो वर्ड्स लिखे हैं, इफ ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज ऑल्सो, तो दोनों ही सिचुएशन जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कवर हो जाती है। एंड हेंस द आंसर should be, क्या आंसर होना चाहिए बता दो, ठीक है। yes, that is the C should be the right answer because both A and B are covering the situation that is being regulated by section number 157 of the CRPC, and hence option number C is the right answer, ठीक है। समझ गए एलिमिनेट कैसे किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखा वो भी जनरली अप्लाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ बी अप्लाई हो रहा है ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो भी इस क्वेश्चन से अगर रिलेट किया जाएगा तो इट इज परफेक्टली फाइन, एंड हेंस वी कैन गो टू ऑप्शन नंबर सी दैट इज कवरिंग बोथ द सिचुएशंस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है द ट्रुथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस can be a fact checked by the police by investigation which the police concerned is empowered under which section, ठीक है। क्वेश्चन है द ट्रुथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द ट्रुथफुलनेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन regarding a cognizable offense can
be fact checked by a police by investigation which the police concerned is empowered under 154, 155, 156 or 159. Yes. पुलिस वाले कॉग्निजेबल अपराध में इन्वेस्टिगेशन कहां करते हैं, बस इतना ही देखना, ठीक है। 154 में एफआईआर है, 55 में नॉन कॉग्निजेबल है, 159 में if the police officer are not conducting the investigation and at that point of time magistrate can go for the preliminary inquiries or he can order the investigation. But 156(3) tells you that police officers at what point of time can go for the investigation in the cognizable offenses. So I believe most of you have given the right answer, that is option number C. ठीक है, coming to the next question, अगला सवाल है question number 15 है that under 156(3) the magistrate can make an order of investigation of the case, registration of the case, both A and B, investigation to be conducted by him. Magistrate क्या order देते हैं 156(3) के अंदर? Yes, investigation of the case, registration of the case, both A and B, investigation to be conducted by him, that is magistrate. ध्यान से जवाब दो, फिर मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान से जवाब। 156(3) के अंदर मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास करते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, बोथ ए एंड बी, और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। यस, 156(3) में जाओ, what is the approach which is being developed over there, we have to follow that. अब देखो वहां पे दो सिचुएशंस आती हैं। नंबर 1 इज कि अगर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करना और रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस करना दोनों अलग अलग विषय हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि पुलिस वालों ने केस रजिस्टर कर लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन शायद ना की, नंबर 1। नंबर 2, शायद पुलिस वालों ने केस ही रजिस्टर नहीं किया है, तो 156(3) के अंदर आप क्या दोनों चीजें नहीं करवा लेते हो? यस, if the police officer refuses to lodge an FIR and refuses to register a case, is it not the magistrate has the power to order the police authorities, yet you have to go for the registration of the case and thereafter the investigation will be conducted? और अगर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस करते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशंस वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर रहे हैं, द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू ऑर्डर दैट यू हैव टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन अ फेयर मैनर। तो 156(3) जो है दैट इज रिलेटेड विद बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एज वेल एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। Sir, Sakiri Vasu is the authority on this case. Actually, I was confused about the option B. It should have been registration of an FIR. That's why I said देखो, अब जनरली ये जो क्वेश्चन है 156(3) की बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस की बात है ना, 156(3) के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस कैन बी ऑर्डर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब एक चीज हमें यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलनी पड़ रही है, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉग्निजेबल केसेस, दो इट इज नॉट रिटन इन द ऑप्शन, बट वी हैव टू प्रिज्यूम इट बिकॉज़ यू कांट से दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ केस कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इट कैन बी ऑर्डर्ड। शिकिरी बसु वर्सेस जो स्टेट ऑफ यूपी का जो आपका जजमेंट है 2007 का, दैट जजमेंट इज प्राइमरली ऑन द इशू कि इफ द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन even ordered by the magistrate, so magistrate can reorder for the fair investigation in that particular case. तो शिकिरी बसु जो है वो जनरल इन्वेस्टिगेशन से ही वास्ता करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस का जो इशू है वो भी 156(3) रेगुलेट कर देता है। बोथ द थिंग्स आर बीइंग देयर, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अगला सवाल है द सीआरपीसी गिव्स अ पावर ऑफ अरेस्ट टू पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, प्राइवेट पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। इसके जवाब तो पता ही है सभी को, दैट इज ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 दैट टू इन्वोक सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी, to invoke 167 subsection 1 CRPC, it is necessary that the arrest should have been effected by a police officer, an officer empowered to arrest under any other law, that is a special act, a police officer or a magistrate, either A or B. 167 subsection 1 CRPC जो है वो किस चीज को रेगुलेट करता है? It is necessary that the arrest should have been effected by a police officer or any officer empowered by a law, any other law, to arrest a person. ध्यान से समझिए,
क्या सीआरपीसी में सिर्फ पुलिस अधिकारी की बात की जाएगी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले जो हैं, ईडी का जो डिपार्टमेंट है, वो भी जब लोगों को अरेस्ट करता है तो 167 की ही प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। ठीक है, अब आपको एक बार 167 में आना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट कम टू द प्रोविजन। Yeah. So look, as far as section number 167 subsection 1 is concerned, now I'm firstly taking up the bare provision which is being written over here, that whenever any person is arrested or detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the 24 hours period by section 57, and the ground for believing that the accusation of information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making investigation, if not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter refer to the case, at the same time shall forward the accused to the magistrate. Now 157-67 subsection 1 के अंदर आपने इस पॉइंट को अगर देखा तो इट इज barely saying that the police officer, whosoever is the officer in charge of the police station or whosoever is making the investigation, that is the IO, not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate the copy of the entries, that is the case diary, along with the accused person, and all will be forwarded to the magistrate. अब ये बात है, लेकिन सवाल में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बीच में आ जाता है। ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिकलिटीज का नहीं पता है तो लेट मी मेक इट क्लियर ओवर हियर। देखो, कह रहा है इट इज नेसेसरी दैट द अरेस्ट शुड हैव बीन इफेक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। परफेक्टली फाइन, बट इज द टर्म पुलिस ऑफिसर only includes the persons whosoever are holding the post under the police department, or some other persons can also be called as the police officers? बाकी लोगों को भी पुलिस ऑफिसर कह सकते हो या नहीं कह सकते हो? यस, कह सकते हैं। हमारे पास जजमेंट्स हैं, दीपक महाजन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का जजमेंट है। ठीक है, सेवरल अदर जजमेंट्स आर देयर। तूफान सिंह का जजमेंट आया, जिन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है दैट द लाइक फॉर एग्जांपल एक्साइज ऑफिसर्स आर आल्सो द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ जजमेंट्स आर देयर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पुलिस ऑफिसर की तरह काम करते हैं। द पॉइंट इज कि वेदर दे हैव द इन्वेस्टिगेशन पावर्स और नॉट। ठीक है, वेदर दे हैव द इन्वेस्टिगेशन पावर्स और नॉट। नाउ बिकॉज section 167 is using the word police officer, but at the same time the option number B, whatever is being written over here, that is an officer empowered to arrest under any other law. अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर दी गई है किसी दूसरे कानून के अंदर, दैट इज अ स्पेशल लॉ, तो 167 जो है वो साथ में ही चलता है, बिकॉज इट इज द पेरेंट लॉ एंड इट इज एप्लीकेबल ओवर द स्पेशल लॉज आल्सो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम कॉन्ट्रेरी opinion or contrary thing written in that particular law. So the correct answer over this particular question is D. ठीक है, only the I have a query. yes, पूछिए सर, जैसे आपने बोला ना, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की पावर, आई एग्री परफेक्टली विद दैट कि अदर स्पेशल एक्ट में कोई ऑफिसर है और उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर एंड ही हैज अ पावर टू पुट अप द चालान अंडर 173, तो ही शुड बी कॉल्ड अ पुलिस ऑफिसर। बट सर क्वेश्चन में ना सर प्लीज वो निकालेंगे, मतलब बैक करेंगे क्वेश्चन। जी बोलिए सर। देखो ना, क्वेश्चन में लिखा है ऑफिसर एम्पावर्ड टू अरेस्ट अंडर एनी अदर लॉ। सर यू योरसेल्फ सेड ना, इट इज अ सेटल्ड पोजीशन दैट इन्वेस्टिगेशन की पावर, मतलब अरेस्ट की तो कहीं बात नहीं करी होती है ना उसमें, ही हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो इस क्वेश्चन में इट शुड हैव बीन, अगर डी ऑप्शन सही होना चाहिए तो क्वेश्चन में इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज होना चाहिए था ना सर, मतलब मेरा से। देखो, हाँ ठीक है, सोच तो आप ठीक ही रहे हैं, बट द पॉइंट इज that if any officer is empowered to arrest under any other law, so the purpose of arrest is what?
That we have to understand. ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि as per the judgments stated by the Honorable Supreme Court that if any person has the power of investigation and that person will be considered to be the police officer, जिसके पास भी चैप्टर 12 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन की पावर से वो पुलिस ऑफिसर माना जाएगा. But your point is, I believe it is perfectly fine. लेकिन is it not the, we can say the arrest of a person is also somehow related to the process of investigation itself? Yes. So though the process of arrest is related to process of investigation, but हाँ मतलब to procure the attendance of the accused ही होता है ना सर arrest का. तो सर investigation के लिए होता है. ठीक है. ठीक है सर. Coming to the next question. ठीक है, अब इसमें ये होता क्या है ना, देखो these are the questions which are being formulated so that we can get certain conceptual clarities over the issues. ठीक है, but there can be certain another things which can be added to these questions also. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सवाल गलत है, बट ये कि सवाल का बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ लेके आ रहा है. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. The main object of 167 subsection 1 CRPC is production of an arrestee before the magistrate, refers to the investigation, transmission of the case diary, extension to the police custody. Yes. What is the main object of 167 subsection 1? It is option number A, that is the right answer, production of the arrestee before the magistrate. ठीक है, सुष्मिता ऑब्जेक्शन तो रेज कर लोगे, लेकिन जिसके पास भी ऑब्जेक्शन जाएगा that person will also have the knowledge about the that why this particular answer is being given. ठीक है, तो ऑब्जेक्शन should be credible enough. ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वसनीयता जो है वो होनी चाहिए. अगर तो outrightly कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है ना हमारा ऑप्शन, जो मतलब जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस रखे हैं और आपकी ओपिनियन से वो डिफर कर जाता है और आपके पास रिलायबल ग्राउंड है उसको प्रूव करने की, तब ऑब्जेक्शन सस्टेन होता है. अब होता क्या है कि जैसे हिमाचल का पेपर जब भी आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2-4 सवाल 5 सवाल गलत होते ही होते हैं. ठीक है, तो लोग ऑब्जेक्शंस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे वो ठीक कर दिए जाएंगे. कुछ एक क्वेश्चंस में आंसर्स वैसे ही रखे जाते हैं. तो दैट इज बेसिकली how the examiner look after all these things. चलिए अगले सवाल पे आ रहे हैं. If the police officer files a report under 173 of the CRPC, the magistrate may take cognizance upon the same under 191 subsection 1 clause A, clause B, clause C or either of them. Yes, quick. 173 के अंदर अगर चालान पेश किया जा रहा है, चार्जशीट पेश की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो पेश किया जा रहा है, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कौन से सब क्लॉज के अंदर लेते हैं? ठीक है, जो लोग ए कर रहे हैं वो डायरेक्ट में सेक्शन नंबर 190 देखेंगे, तो 190 का क्लॉज ए कंप्लेंट की बात करेगा, क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट की बात करेगा, क्लॉज सी जो है वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है. द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, यस, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, याद रखना, क्लॉज ए के अंदर कंप्लेंट है, बी के अंदर पुलिस रिपोर्ट है, सी के अंदर इंफॉर्मेशन है. शिखा बी कह रहे हैं, डी नहीं होगा, बिकॉज it is talking about 173. ठीक है, 173 के अंदर क्योंकि चार्जशीट पेश होती है, that is the police report, and if the magistrate is taking cognizance on the police report, it will be regulated by clause number B. ठीक है, वो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं माना जाएगा, ना वो इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस माना जाएगा. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. मेरे ख्याल से आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा हो गया. ठीक है, चलिए एनीहाउ. ठीक है, अगला सवाल है, द वर्ड स्टेटमेंट अंडर 161 CRPC includes oral statement, written statement, signs and gestures, all of the above. The word statement under 161 CRPC includes oral statement, written statement, signs and gestures, all of the above. Yes, quick. Section number 161 CRPC includes oral statements, written statements, signs and gestures, all of the above. ठीक है, the right answer is all of the above. ठीक है, 161 जनरली जो बात करता है कि आप ठीक है, signs and gestures की बात वैसे नहीं है, but the police officer will have to reduce those things also in writing. ठीक है, but as far as the concerned situation is given ना, तो मैं 161 का थोड़ा सा आपको ब्रीफ पहले समझा देता हूँ. 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर्स विल फर्स्टली ओरली एग्जामिन द पर्सन. ठीक है, अब यहाँ पे 161 की किसी सबसेक्शन की बात तो की नहीं गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल ओरली एग्जामिन द पर्सन, एंड इफ ही फाइंड्स दैट द पर्सन इज गिविंग एनीथिंग
that he is acquainted with the facts and the circumstances of the case, कि अगर एक व्यक्ति जब उसका ओरल एग्जामिनेशन हो रहा था 161 सबसेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओरल एग्जामिनेशन के दौरान उसने जो कुछ भी कहा उससे हमें ये पता लगता है कि ये व्यक्ति फैक्ट्स से परिचित है, he is acquainted with the facts, तो हम उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स को लिखित में कर लेते हैं, that will be it will be reduced into writing, ठीक है। तो oral statements and written statements both will be regulated। अब यहाँ पे signs and gestures, जैसे आप कह रहे हैं कि 161 के अंदर signs and gestures are nowhere written, but if the police officer is asking a question to a person who is dumb, ठीक है, who can't speak, so whatever the gestures or signs that person is giving, those signs or gestures will be reduced into writing over there, and hence impliedly we have to include all of these three things, ठीक है। so hence the answer should be option number D। लिखा नहीं है signs and gestures की बात, लेकिन we have to presume it like that। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आज हो पाया है, ठीक है। आज तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी रेस्ट इसमें आगे का एरिया लगभग इसमें हमारे सेट में 90 और 100 के आसपास के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आज तो कम ही हो पाया, लेट अस सी, अगर मुझे जरूरत पड़ी, ठीक है, या मुझे ऐसा लगा कि संडे को आई कैन टेक अप द क्लास, तो आई विल टेक अप ऑन संडे आल्सो, ठीक है। बाकी रेस्ट आई एम क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे, ठीक है। आज मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बस एक चीज, हाँ पूछिए सुष्मिता, क्या पूछिए? सर मैंने वो टेस्ट में आपने लिखा था ना आर, मतलब वो एसिटिक एसिड वाला सर, सर रिमार्क्स। हाँ, अभी आपका एप्लीकेशन पे वो असाइनमेंट सबमिट हुआ है ना, तो आई विल सी ओवर देयर एंड व्हाटएवर द रिमार्क्स आई थिंक। नहीं सर, आपने दे दिए, पिछले टेस्ट की बात कर रही हूँ सर मैं, जो आपने दे दिए हैं। हाँ बोलिए। सर आपने लिखा है ना उसमें मतलब केस के बारे में लिखा है, उसमें लिखा है कि इम्पॉसिबिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होता है, मतलब ठीक है। तो सर क्यों नहीं होता? मतलब अब आप किसी को शुगर वाली पिल्स दे रहे हो तो कैसे अबॉर्शन हो सकता देखो, है? उसमें बस एक ये चीज ध्यान में रखना, हमारा आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 511 है उसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी है ना। तो जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति एक ट्रेजर को चोरी करने जाता है और वहां पे जो है ट्रेजर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, सो हेंस इट विल बी द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट, है ना। तो थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को आईपीसी के सेक्शन नंबर 511 ने जो है वो डिस्करेज किया है, उसको फॉलो नहीं किया। नंबर 2, ये जो हमारा एक केस हुआ था, पुराना केस है इंग्लैंड का, ठीक है, आर वर्सेस रिंग, RING। तो आर वर्सेस रिंग के केस के जो फैक्ट्स थे वो हमारे सेक्शन नंबर 511 के इलस्ट्रेशन के अंदर है। जिस केस में आर वर्सेस रिंग के केस में जब कोर्ट ने, इंग्लैंड की कोर्ट ने उसे हेल्ड किया, तो पुरानी कुछ एक जजमेंट्स थी जो इम्पॉसिबिलिटी के रूल पे डिसाइड हुई थी कि एक व्यक्ति ने घर के अंदर जाके चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन घर जो था अंदर से खाली था, तो इम्पॉसिबिलिटी की थ्योरी अप्लाई करते हुए उस व्यक्ति को बिल्कुल भी लायबल नहीं किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि at that point of time there is the act of the person, and if something is there in the house, he might have attempted that or he might have committed the offense itself. So merely on the basis of impossibility, a situation can be there that most of the times the accused will be left without any conviction. So court ने कहा कि the moment there is the act of the person, merely because the subject matter is mistaken, merely because the subject matter is mistaken, does not give any benefit to the accused. तो R versus Goodall का एक जजमेंट है, GOODALL, Goodall का जजमेंट है, जो फैक्ट्स से हमारे मिसकैरेज वाले इशू की, उसी जजमेंट से उठे हुए हैं, जिस जजमेंट में इम्पॉसिबिलिटी की थ्योरी को जो है डिस्करेज किया गया और द पर्सन इज लायबल फॉर द अटेम्प्ट कॉज मिसकैरेज। ये पूरा प्रिंसिपल है उसके पीछे। बिट वी कैन से अ थ्रेट। हाँ पूछिए। सर प्रिवी काउंसिल की जजमेंट थी ना, अजकर अली प्रधान वर्सेस एम्परर 1934 प्रिवी काउंसिल, तो उसमें ये हेल्ड हुआ था कि एक गर्ल को मतलब उसका बॉयफ्रेंड ने मतलब अबॉर्शन के लिए ना उसको एसिटिक एसिड और शुगर का वो दे देता है, तो ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर अबॉर्शन, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही नहीं माना गया था, क्योंकि इट वाज हेल्ड दैट एसिटिक एसिड और शुगर से ना सर किसी का अबॉर्शन हो ही नहीं सकता। तो मैंने वही वाला लॉजिक लगाया था सर। ठीक नहीं, आपने ठीक लगाया है। ये जो कंसर्न सिचुएशन है ना, अगर आप इसको इम्पॉसिबल, 4 सिचुएशंस है, 4 तरह की पॉलिसीज है हमारे अटेम्प्ट के केसेस में, ठीक है। तो अगर आप इम्पॉसिबिलिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इम्पॉसिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंगली यू कांट मेक दैट पर्सन लायबल। बट जैसे मैंने कहा ना कि हमारा आईपीसी का सेक्शन नंबर 511, ठीक है, आर वर्सेस रिंग के केस को फॉलो करते हुए बनाया गया, और जो इलस्ट्रेशन जो है 511 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन, उस इलस्ट्रेशन के अंदर भी आप इम्पॉसिबिलिटी की थ्योरी अगर लगाएंगे तो पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। सो वी कांट फॉलो समथिंग व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद 511 सीआर आईपीसी, ठीक है, ये है इसके पीछे।
और सर वो डॉक्टर वाला आपने लिखा था कि आधा सही लिखा है आधा गलत, और सर मेरे को पता है कि ओबेटमेंट नहीं होना चाहिए, तो सर उसपे क्या लगेगा फिर, वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा? सर एरिक्सन, डॉक्टर एरिक्सन सर, वो वाला, वो उसका हाँ, पेशेंट। एरिक्सन वाला जो केस था, ठीक है, उसमें जो है ना पैसिव एथनेशिया के प्रिंसिपल पे आपने जो लिखा था दैट इज परफेक्टली फाइन। एक्टिव एथनेशिया, पैसिव एथनेशिया आपने वहां पे बनाया है। नंबर 2 इज दैट will that person will get the benefit of euthanasia? The answer is no, because for taking the benefit of euthanasia we have to follow the principles given by the honorable Supreme Court in the common causes judgment, ठीक है? तो एक तो वो है। Number 2, because that person is not doing any act over there, ठीक है, he is not doing any act over there. Now coming to the next situation कि अब यहाँ पे intentionally he is not going to cause the death of the person, but the point is he has the knowledge that whatever he will do it is going to cause the death of the other person, and hence knowledge के basis पे you can make that person liable. abatement का charge नहीं लग पाएगा, ठीक है? सर 304 में डालेंगे उसको, 304 clause 304 you can go for 304 part 2 in that particular case. एक्चुअली सर वो जो ना दिया था अरुणा शॉनबा का केस, इट वाज गिवन अंडर सेक्शन 306 बेयर एक्ट में ना, तो आई वाज कंफ्यूज कि उसको कहां डालें, उसको 306 में तो आएगा ही नहीं। एक्चुअली अबेटमेंट के लिए it is a primary requirement that the person whosoever is doing that thing वो उसने इंस्टिगेट किया, ठीक है, उसने सामने वाले को प्रोवोक किया कि वो सामने वाला सुसाइड कर ले, उस केस में अबेटमेंट लगता है ना। अबेटमेंट जब भी आप कहीं पे 305 या 306 में अप्लाई करेंगे, सो अबेटमेंट का मीनिंग 107 से ही उठाया जाएगा, और 107 तीन तरीके की अबेटमेंट की बात करता है, दैट इज बाय एडिंग, बाय इंस्टिगेशन और बाय कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे अबेटमेंट का जो फर्स्ट मीनिंग है, दैट इज व्हाट इज अबेटमेंट, दैट इज प्राइमरली सेटिस्फाइड ओनली देन 305 या 306 लगता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमने दी थी उसमें अबेटमेंट नहीं है कहीं। आई गॉट इट सर। चलिए थैंक यू सो मच।